یہ ایم کیو ایم ہی اکیلے ہے، یہ ایم کیو ایم ہی اکیلے ہے۔ ایم کیو ایم کی اعلیٰ قیادت کو حیدرآباد جانا تھا، لیکن حیدرآباد جانے کی بجائے ان کا وہ پروگرام پوسٹ پونڈ ہو گیا۔ کیا صوبے کی موومنٹ کے حوالے سے تمام سیاسی جماعتوں نے ایم کیو ایم کو آئسولیٹ کر دیا ہے؟ یعنی کہ ایم کیو ایم بالکل اکیلی جماعت رہ گئی ہے کہ یہ جو بات کر رہی ہے، یا پھر معاملہ کچھ اور سنگینی کی طرف جا رہا ہے؟ یہ ایم کیو ایم ہی اکیلے ہے، یہ ایم کیو ایم ہی اکیلے ہے، یہ ایم کیو ایم ہی اکیلے ہے۔ پورے سندھ کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں۔ آج 21 اگست کو ایک بہت بڑا مظاہرہ حیدرآباد کے اندر انعقاد کیا گیا، جس کا مین سلوگن سندھ کی وحدت کے حوالے سے یا سندھ کی تقسیم نہ کرنے کے حوالے سے تھا۔ حیدرآباد کے اندر اس پروٹیسٹ کے ساتھ ساتھ، اس مظاہرے کے ساتھ ساتھ ایک تناؤ کی کیفیت بھی رہی، مگر ان ساری خبروں میں اہم خبر جو آئی اور وہ جو سب سے بڑا اہم ایلیمنٹ سامنے آیا، وہ ایلیمنٹ یہ تھا کہ تحریک انصاف نے، جس کی سندھ کے اربن علاقوں کے اندر یا سندھ کے شہری علاقوں کے اندر بڑا ووٹ بینک موجود ہے، اس نے صوبے کی مخالفت کر دی ہے۔ صاحب یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر اس حکومت نے سندھ میں کوئی نیا صوبہ بنانے کی کوشش کی یا کراچی کو سندھ سے الگ کرنے کی کوشش کی تو پاکستان تحریک انصاف ایسے کسی بھی فیصلے کو سپورٹ نہیں کرے گی، اور اس نے سندھ کی تقسیم کی مخالفت کر دی ہے۔ یہ دعویٰ کس کی طرف سے کیا گیا اور کیوں کیا گیا؟ اور اب ایک اور بڑا اہم ایلیمنٹ اس کے سامنے آیا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اب اس طریقے سے مرسو سندھ نڈیسو کی بات نہیں کر رہے، کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ضرورت کی بنیاد پر ہوگا۔ اس پر سندھ کے قوم پرست کیا اظہار کر رہے ہیں؟ یہ بڑے اہم سوالات کے جوابات آپ کو دینے والا ہوں اور بڑی تہلکہ خیز خبریں آپ کو دینے والا ہوں، لیکن ان سب خبروں کے لیے ڈریے نہیں، جھجکیے گا نہیں، گھبرائیے گا نہیں، چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کہ ہمیشہ سے یہ بات کہتی رہی کہ وہ سندھ کی تقسیم نہیں ہونے دے گی، یہاں تک کہ سعید غنی، شہلا رضا کے سمیت ناصر حسین شاہ، شرجیل انعام نیمن سب کے بڑے ہی سخت بیانات آئے۔ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں فسادات ہوں یا لڑائیاں ہوں، لیکن جب بلاول بھٹو زرداری سے اس حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب سندھ یہاں پہ صوبوں، نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم اس کو بالکل رد نہیں کر رہے، جہاں جہاں ضرورت ہو اور جہاں جہاں وہاں کی اکثریت اگر اس کی حمایت کر رہی ہو تو ہم اس کی مخالفت نہیں کر رہے۔ عوام کی رائے کے ساتھ رہی ہوگی اور جو قدم اتفاق کی رائے سے کیا جائے گا، عوام کے اتفاق کی رائے سے۔ بلاول بھٹو زرداری کے یہ الفاظ آپ سن سکتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، مگر بلاول بھٹو زرداری بالکل کیٹیگرلی بالکل ہی یہ نہیں کہہ رہے کہ جناب تمام صوبے نہیں بننے چاہیے۔ اب اس وجہ سے بلاول بھٹو زرداری کی نیم رضامندی ظاہر کی جا رہی ہے، یا پھر بلاول بھٹو زرداری پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت پاکستان کے مقتدرہ حلقوں کے موڈ سے بہت اچھی طرح واقف ہے اور وہ ایک دم سخت بیانات کی طرف یا ایک دم رد کرنے کی طرف نہیں جا رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا یہ بیان اور اس طرح کا بیان سندھ کے اندر قوم پرست تحریکیں اسے شدید رد عمل کے طور پہ دیکھ رہی ہے، اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ایک طرف بلاول بھٹو زرداری سندھ کے قوم پرستوں کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں اور دوسری طرف وہ سندھ صوبے کی بالکل براہ راست مخالفت کرتے ہوئے بھی نظر نہیں آ رہے کہ سندھ میں صوبہ نہیں بننا چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت اس دورہائے پر کھڑی ہوئی ہے کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ دوسری طرف امن و امان کے حوالے سے اور دیگر بیانات کے حوالے سے مختلف قوم پرست رہنماؤں کی گرفتاریاں بھی سندھ پولیس کی طرف سے ڈالی جا رہی ہے۔ بلاول بھٹو کھان پوچھڻ چاهيان ٿي ته جڏهن توهان چئو ٿا ته نون صوبن جي مخالفت نہ آهي هو پر عوام جي راءِ سان ٺاهڻ گهرجن، مسٽر بلاول توهان کي جتي سخت موقف اختيار ڪرڻ گهربو اتي توهان صوبن تي مبهم بيان ڏئي ڪنهن کي خوش ڪرڻ چاهيو پيا۔ اس وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی پر اب دباؤ بڑھتا جا رہا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی نچلی سطح کی لیڈرشپ تو بالکل ہی منع کر رہی کہ صوبہ نہیں ہوگا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی اپر قیادت کوئی بھی واضح پیغام نہیں دے رہی ہے، جس سے بات محسوس کی جا رہی ہے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی نیم رضامندی کی طرف جا رہی ہے۔ مگر اس نیم رضامندی کے معاملے میں ایک بڑا اہم معاملہ بھی سامنے آیا ہے۔ این کیو ایم پاکستان کے جس نے اس وقت صوبوں کی حمایت کی اور جو بقول مصطفیٰ کمال کے وہ صرف تائید کر رہے ہیں، کن کی تائید کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ محسن نقوی اور پاکستان کے کچھ مقتدہ حلقوں کی تائید کر رہی ہے، خود
कौन फरमा रहा है? मुस्तफा कमाल साहब फरमा रहे हैं। मुस्तफा कमाल साहब ये जो बात फरमा रहे हैं कि वो तायद कर रहे हैं, तो इसके बाद क्या दीगर सियासी जमातें उनके साथ पुष्ट पर खड़ी क्यों नहीं हो रही है? हामिद मीर साहब ने अपना एक पॉडकास्ट किया, और पॉडकास्ट से बल्कि टीवी चैनल जियो न्यूज पर उन्होंने शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम ने इस बारे में इंकशाफ किया कि तहरीक इंसाफ पंजाब के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो सूबे की हिमायत करेगी, लेकिन सिंध के अंदर सूबे की हिमायत नहीं करेगी। आपके इल्म में होगा तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है कि अगर इस हुकूमत ने सिंध में कोई नया सूबा बनाने की कोशिश की या कराची को सिंध से अलग करने की कोशिश की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसे किसी भी फैसले को सपोर्ट नहीं करेगी। क्या से चंद माह पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध को तकसीम ना करने के हवाले से एक करारदाद पेश की थी। इस करारदाद को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो सपोर्ट किया था, लेकिन एमक्यूएम ने इसकी मुखालफत की थी। मगर सबसे बढ़कर ये कि वहां पर तहरीक इंसाफ के जो पार्लिमानी लीडर हैं शब्बीर कुरैशी साहब ने वाज़े तौर पर यह कहा था कि हम इस करारदाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत करते हैं और हम सिंध की तकसीम नहीं चाहते। जमात इस्लामी के एमपीए ने भी इसी तरह की गुफ्तगू की थी। नुकता यह है कि इस वक्त ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ तहरीक इंसाफ इस मामले में साथ नजर आ रही है, और तहरीक इंसाफ क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के करीब जाती हुई नजर आएगी, और इस सारी सूरत हाल में एमक्यूएम को अलहदा छोड़ दिया गया है। अब एमक्यूएम को अलहदा छोड़ने का मतलब यह है कि इस वक्त सिंध की सियासत के अंदर दीगर कोई भी वो सियासी जमातें जो कि इस वक्त इक़्तिदार के अंदर है या जो कि इस वक्त मुक़्तदरा क़ुव्वतों के बड़े करीबी हलकों में, वो इस हवाले से गुफ्तगू करने से गुरेज कर रही है। एमक्यूएम क्या अकेले इस कर पाएगी? ये एमक्यूएम ही अकेले है, ये एमक्यूएम ही अकेले है। मामला यह है कि एमक्यूएम को ही रायामा हमवार करने के लिए खास तौर पे भेजा जाएगा। मुस्तफा कमाल साहब को आज हैदराबाद जाना था, लेकिन मुस्तफा कमाल साहब का प्रोग्राम आज पोस्टपोन हुआ, जिसकी वजूहात नहीं बताई गई। अब इतवार के रोज मुस्तफा कमाल साहब कराची में फिर इस हवाले से खिताब करेंगे। क्या ये माहौल में एमक्यूएम क्या अकेले ही तायद करती रहेगी या फिर उसके साथ कोई नया चीज या नया सिस्टम भी सामने आएगा? आज हैदराबाद के अंदर एक बहुत बड़ी रैली वहदत सिंध के नाम से मुनक्किद की गई, जिसके अंदर तमाम कौम परस्त जमातों और एक्शन कमेटी ने शिरकत की, और उस शिरकत में इस बात को बड़े ही वाज़े तौर पर कहा गया और ऐसे स्लोगन्स लगाए गए कि जिसमें सिंध की तकसीम की या सिंध में नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की जो कोई भी हिमायत करेगा उसके खिलाफ सख्त तरीन जबानें इस्तेमाल की गई। ऐसी सूरत हाल में कि जहां पर इस वक्त जो लोग सूबे की या मुख्तलिफ आईनी जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं उसकी हिमायत करना चाह रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर आजादी इजहार या उन पर बात करना ज्यादा मुश्किल काम हो गया है। और उसकी बनिस्बत जो कि सिंध की में नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के खिलाफ गुफ्तगू कर रहे हैं, वो वाज़े तौर पर अपने आप को रायामा हमवार करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर अब इस सारी सूरत हाल में क्या निजाम इसी तरीके से चलेगा, और क्या वाकई में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाने के लिए जो 6 महीने का फार्मूला दिया गया था उसी के लिए क्या तहरीक इंसाफ को थोड़ी रियायत दी जा रही है? मगर दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ खुद इसकी मुखालफत करती हुई नजर आ रही है। सूबे की तहरीक इंसाफ का इस निजाम के अंदर दाखिल होना क्या मायने रखेगा? अब सूरत हाल ये बन रही है कि इमरान खान को कुछ वक्त के लिए रिलैक्सेशन देकर ये बात वाज़े तौर पर तमाम सियासी जमातों को पैगाम दे दिया गया है कि ऑप्शन किसी वक्त भी तैयार हो सकता है। मगर ये ऑप्शन क्या 239(4) वो आर्टिकल के जो कि जिसके तहत सूबों की तश्कील होनी है उसमें कोई तब्दीली रोनुमा कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, ये बड़ा सवाल है। इस वक्त सिंध में बार बार इस बात का इजहार किया जा रहा है कि जनाब ये सिर्फ और सिर्फ मुतालबा एमक्यूएम के लोगों का या उर्दू बोलने वालों का ये मुतालबा है। मगर आप अगर सिंध के अंदर दीगर जगहों पर जाकर देखें तो सूरत हाल ऐसी नहीं है। कुछ लोग खास तौर पर इसे एमक्यूएम के साथ फीड कर रहे हैं या इसे महाजिरों के साथ फीड कर रहे हैं, और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब ये महाजिर है कि जो ये सूबा मांग रहे हैं, जबकि इनकी गुफ्तगू या इनका लबो लहजा जहां वफाक की तरफ से गुफ्तगू की गई है उस तरफ नहीं है। और वाज़े तौर पर यह बात सामने आ रही है कि ये नफरतों की में इजाफा किया जा रहा है। एमक्यूएम के हलकों के अंदर या महाजिर हलकों के अंदर इस वक्त सूबे की मूवमेंट उस शक्ल में नहीं है जिस तरीके से उसकी मुखालफत
की शक्ल इस वक्त सिंधी कौम परस्त या सिंध के अंदर मौजूद है। लेकिन क्या ये मामला खुद सिंधी कौम परस्तों और एमक्यूएम के हाथ का मामला है? क्या एमक्यूएम जो कि अपना 140A का मुतालबा नहीं मनवा सकी, यानी कि आपको याद होगा कि जब पीडीएम की हुकूमत बन रही थी उस वक्त वसीम अख्तर, ये क्या नाम है, खालिद मकबूल सिद्दीकी, इन सब ने एक मुआहदे पर दस्तखत किए थे। ये उस मुआहदे पर अमल नहीं करवा सके। ये उसके बाद ये मौजूदा हुकूमत को बनने के बाद जो मुस्लिम लीग नून के साथ मुआहदा हुआ था उस पर अमल नहीं करवा सकी। तो एमक्यूएम क्या वाकई में वही ताकत रखती है कि वो अपनी बात को मनवा कर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के लिए कोई चीज ला सकेगी, और इतनी ताकत में है कि वो ला सकेगी? तो आपका जवाब होगा नहीं। तो फिर एमक्यूएम के लोगों पर या एमक्यूएम पर इसका ब्लेम क्यों आ रहा है, या खासतौर पर महाजरों पर इसका ब्लेम क्यों आ रहा है? अगर जिन्हें ये बात फैसला करना है, जो 26वीं तरमीम, जो 27वीं तरमीम और उससे पहले कई ऐसी तरमीम होती रही, चाहे बाजवा साहब की एक्सटेंशन का ही मामला हो, तो उसमें वो तमाम सियासी जमातें बकौल रजा रब्बानी के वो खून के आंसू रोते हुए भी उन्होंने जो है वो उसकी हिमायत कर दी। तो जब कभी भी ये फैसले होंगे तो ना ही सिंधी कौम परस्तों की वो बात उस तरीके से सुनी जा सकती है, ना ही वो महाजरों की बात सुनी जा सकती है। अगर महाजरों की या एमक्यूएम की बात सुनी जाती तो किश्वर जहरा ने उस आर्टिकल 239(4) में तब्दीली के लिए बाकायदा एक बिल पेश किया था, और वो बिल सख्त खाने की नजर हो गया। जब एमक्यूएम ने अपने ताकत के वक्त में, कि जब वो 239(4) को उसने पेश किया था, तो उस वक्त जब उसकी बात नहीं सुनी गई, तो एमक्यूएम की बात को आज या अभी उस तरीके से वजन क्यों दिया जा सकता है, जब तक कि वफाकी हुकूमत या वफाक ना समझे। कहने का मकसद यह है कि ये बात अगर किसी के सर पर डाली जा रही है तो वो बेवजह डाली जा रही है। अगर महाजरों और सिंधियों के दरमियान तफरीक की बात की जा रही है तो ये गलत की जा रही है। असल मामला यह है कि ना ये इनके बस की बात है, ना ये उनके बस की बात है, ना वो रोक सकते हैं, ना ये करवा सकते हैं। कराची और सिंध के फैसले वफाक के अंदर होते हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक के अंदर वो बड़ी मजबूत पोजीशन रख रही है। और जिस तरह मैंने अपने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि मुबहम किस्म की गुफ्तगू करना बिलावल भुट्टो जरदारी का, ये बात वाजे कर रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी मुबहम गुफ्तगू करके ये वाजे पैगाम दे रहे हैं कि जनाब हम कुछ शराइत के साथ आपके साथ हो सकते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी 72-73 सीट्स के साथ वहां पर मौजूद है। एमक्यूएम के 20 या 21 सीट्स की वो अहमियत मौजूद नहीं है। लेकिन एक तरफ, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है कि जो कि इस बारे में मचल रही है कि वो उससे किसी भी वक्त गुफ्तगू की जाए, और वो बात करने के लिए तैयार है। तो नुक्ता इस बात को समझिएगा कि जो लोग एक दूसरे के खिलाफ गुफ्तगू कर रहे हैं या करवाने की कोशिश की जा रही है, मेरा उनसे सिर्फ इतनी सी बात है कि भाई ये फैसला वफाक में करना है, और वफाक में ये दोनों इकाइयां अगर इसी तरीके से अगर बात करती रही तो इन दोनों इकाइयों में कोई मामला नहीं हल होता, ना ही इनके पास वो ताकत है। हमें हकीकत पसंद होना चाहिए और समझना चाहिए, जिनके पास ये ताकत है या जो ये फैसले कर सकते हैं, उनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक जब वो फैसला होगा तो ना आप कुछ कर सकते हैं, ना मैं कुछ कर सकता हूं। ऐसी सूरत हाल में बार बार महाजिरों को धमकियां देना कि आपका टंडोलायार में क्या होगा, टंडो मोहम्मद खान में क्या होगा, आपका सखर में क्या होगा, आपका गोटकी में क्या होगा, आपका हैदराबाद में क्या होगा, आपका कराची में क्या होगा, ये बेफजूल सी गुफ्तगू है और इसका कोई हासिल नहीं है। यहां पर आपको जमीन में दुश्मन कुछ और नजर आ रहा है, हकाइक कुछ और है। जब कभी भी वफाक फैसला करेगा तो उस वफाक के फैसले में यहां पर इनका कोई असर उतना नहीं होगा। अगर असर होता तो 140A हो जाती, असर होता तो 239(4) पर, यानी कि सूबों के हवाले से जो करारदाद किश्वर जहरा ने पहले दी थी वो कबूल हो जाती। तो नुक्ते को समझिए, बात को समझिए और जरा गौर तलब समझिए कि जनाब अगर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने हैं तो सिर्फ सिंध में नहीं बनेंगे, पूरे पाकिस्तान के अंदर में बनेंगे। और जब बनेंगे और जब वफाक जो फैसला करेगा उसमें ना हमारी चल सकती है ना आपकी चल सकती है, वो इस्लामाबाद के अंदर का फैसला है जहां पर जिन जमातों की अक्सरियत है वो फैसला करेगी। और सबसे बढ़कर ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुबहम अंदाज ये बता रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नीम रजामंदी जाहिर कर चुकी है। ऐसी सूरत हाल में आपका जो मुखालफत में है उनका निशान हदफ जो है वो ये नहीं होना चाहिए, निशान हदफ कुछ और होना चाहिए। और जो लोग इस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की हिमायत में वो भी इस बात को समझे कि जनाब ये फैसले कहीं और होने,
اور ہم تو صرف اس میں خاموش تماشائی نظر آ رہے ہیں. لیکن اگر لوگوں کو اختیارات ملتے ہیں, لوگوں کو اگر اپنے اپنے علاقوں کے اندر طاقتور حکومتیں ملتی ہیں, تو اس سے بڑھ کر خوشی کسی کو ہوگی, وہ ہم سب کو ہوگی. چاہے وہ گھوٹکی میں رہنے والا ہو, چاہے نواب شاہ میں رہنے والا ہو, چاہے ٹنڈولایار میں ہو, چاہے بدین میں ہو, چاہے وہ چکوال کے اندر ہو, چاہے وہ خوزدار کے اندر ہو, چاہے وہ ڈی آئی خان کے اندر ہو, وہ چاہے کہیں پر بھی ہو. اگر ان سب کو ان جگہوں پر اپنے اپنے ایڈمنسٹریٹو یونٹس طاقتور اگر ملتے ہیں اور لوگوں کو اپنے لیے حق ملتا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں برا کچھ نہیں ہے. اسے انتظامی بنیادوں پر تقسیم سمجھنی چاہیے. ہم سب پاکستانی ہیں, ہم سب اس دریا سندھ کے کنارے ہی بیٹھے ہیں, سب لوگ ایک ہی ہیں. صرف اگر علاقوں میں اگر ہر ایک کو اختیارات مل جائیں تو اس میں کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے, باقی آپ کی اپنی مرضی ہے, لیکن نہ یہ میرے اختیار میں ہے, نہ یہ آپ کے اختیار میں ہے. یہ جس کے اختیار میں ہے, یہ وہ کس طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کریں گے, یہ ان کے اوپر ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ کے بعد